just to do a quick, recap, what these MIS Saturdays are and ये क्या करते हैं हम. I see a lot of people have joined early today. So thank you to all of you, Amandeep Kaur, Oliver Shah, Pratik Arora, and Rahul Mehta. You guys are the first ones. We will start in about 6 to 7 minutes time. We generally start at 2:30, but sometimes I wait a little more for people to join in. So till then, अगर कोई भी questions है आपके which you think I might be able to answer, you can ask me. You can even share your screen, and if you have any specific doubts with respect to any of the sheets that you are struggling with, if you want to show me your sheet and then maybe get some idea from me or everybody else who was there in the forum, we can do that for the next 4 to 5 minutes. In the meantime, मैं सबको बताना चाहता हूँ कि we have a bigger program which is called Tech Mastery Advanced, so which is basically a year-long program, and the participants who are part of that big program also get access to a particular formula helper page, which is this particular page. यहाँ पे we basically have a list of important functions that help any management information system person or a database management guy, a DME, so to do their work, to basically quickly be able to quickly and accurately be able to generate their reports. So if you are part of Tech Mastery Advanced, you can simply go to your browser and you can type formula.coitbox.com, and this will take you to this particular page, and then you'll be able to basically browse all the content here. So over the last, I think, 2 months, we have been covering all these content. Okay, you have a video, and with the video you also have test sheets, and wherever applicable we also provide a practice sheet. Okay, so we have covered so far. We have covered date related formulas. We have covered the general formulas. We have covered filter. We have covered the Google specific functions. We are also done with logical functions. Okay, we have done lookup functions, and last week we had started with the text functions. We had stopped at join, and today we will start with text join. Okay, the reason why we are doing this is again a twofold effort. जो भी DMEs हैं, आपको अगर इसमें कोई डाउट्स हैं आप मेरे से पूछ सकते हैं. At the same time, we also put out the content for a lot of other people who are not part of our workshops. So this MIS Saturday workshops will always be free, and we alternate Saturdays को हम ये workshop करते हैं, and you all are more than welcome to basically come join us, and I'll try and help you all with as much as I can possibly help within this 1 hour time that we have. So मैं chat पे ये formula.coitbox.com का link एक बार डाल देता हूँ आप लोगों के लिए. I also have a bigger program. If any of you are interested in the DME program that I cover, you can go to itpx.in /DME program, okay, on your browsers, and you will basically arrive at this particular page. So currently I am doing a session which will finish on the 25th of March. We are on the, I think, 5th batch of DME. The 6th one will start from June, and there are a lot of topics, important topics, and crazy formulas and tips and tricks that we share about how to write this crazy formulas. And we also have a lot of things which can help you
automate your work, typically with add-ons on Google Sheet. Okay. We also talk about FMS, and we give you templates of FMS through which you can basically just plug your stages, and you can basically have a running FMS uh, which is built on array formulas. Okay. It will eventually slow down, but not before, at least before 3 to 4,000 records. Okay. Concepts of auto archival is also taught along with that FMS workshop. We also have Data Studio advanced pivots with slicers and charts on day 6. And then finally on day 7, we basically have a sharing session where whatever you have learned within the workshop or otherwise, all the people are expected and encouraged to share their experiences. And then we have a certification, and then we basically create a support group. Those of you who are part of the MIS Saturday right now, uh, I am inviting you all to be part of the support group already. This particular support group is only for MIS executives and DNEs. Business owners, please, do not join this, particular group. Firstly, it might not be relevant for you. Secondly, other business owners who are part of our workshop rightfully has raised concerns about, coaching. So, we do not encourage business owners to be part of this particular group. But DNEs, if you are not part of this particular group, you all can definitely, join this WhatsApp group. Just give me a second. I'm putting the WhatsApp group link in the chat for all of you guys. This is the link. Okay, you all can join this link. I will also try and put this link in the description of this video that if you're seeing on YouTube. Finally, coming back to the YouTube channel itself, Mr. Sanjeev Jain runs his own YouTube channel, and you can access that at itbx.in/YT. Okay, if you just type this, you will go to his channel, and here you will also find all the past MIS Saturday workshop links. Okay, if you go to his channel, you can go to playlists. Okay, under playlist you will have a lot of our testimonials. Also, he's recently started doing short motivational stories, so you all can try and check this out. These are something that he sends out every morning, and these are really motivational and thought provoking. So I would, those of you who are not subscribe to this channel, please do subscribe to this. These stories are really thought provoking, and I think important for every one of us to understand, learn, and imbibe in our lives. And coming to the past MIS Saturday workshops, if you go to the MIS Saturday playlist, you will see all these links which are there. So from day 1, we have maintaining all the MIS Saturday links right here. So itbx.in/YT. If you are not subscribed to his channel, please do subscribe. I mean, for a person like him, only having 6.2K subscribers, I think it's pretty low. He's doing a lot of good work, and I think he deserves, a lot more, subscribers and definitely more comments. Okay. So having said that, we will, start today's, workshop. We will start with the text join function. Okay. Feel free to ask your questions after each topic. If you have any questions, we will definitely be happy to take your questions. Hello guys, this is Damini from CEO IT Works. So today we are learning text join function. टेक्स्ट जॉइन बेसिकली वर्क करता है इसको ऑल्टरनेट कॉन्केटिनेट का भी फंक्शन बोल सकते हैं कि कॉन्केटिनेट फंक्शन का ये ऑल्टरनेट भी है एडवांस ऑल्टरनेट
जिसमें ये टेक्स्ट को भी, नंबर को भी, ये सब कंपाइल कर देता है। इसमें क्या है कि अगर हम रो वाइज भी कंपाइल कर सकते हैं और कॉलम वाइज भी कंपाइल कर सकते हैं। अगर हम इस पूरे रो को कंपाइल करें तब टेक्स्ट जॉइन इजीली वर्क कर सकता है कि हमें एक ही सेल में ये सारे नेम चाहिए। तो अब हमें यहाँ पे वन बाय वन नहीं करना पड़ेगा। जैसे देखा होगा कि जब हम कॉन्केटिनेट करते हैं, यहाँ पे जब कॉन्केटिनेट करते हैं तो इसमें हमें स्ट्रिंग वाइज लेना होता है, स्ट्रिंग वन, देन हमें यहाँ पे एक स्पेस देना होता है, फिर स्ट्रिंग यहाँ पे, फिर ये हो गया, ये फंक्शन लिया। अब ये ऐसे करना पड़ता है, बट इन केस कि मुझे इसी में ये सारे जो भी रो है मुझे इसका डेटा चाहिए एक ही रेंज में, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, A3 के बाद फिर कॉमा, फिर A4, A5, A6 वन बाय वन करके यहाँ पे हमें टाइप करना पड़ेगा। बट टेक्स्ट जॉइन फंक्शन क्या है, ये काफ़ी अच्छा फंक्शन है यूज़ करने के लिए। टेक्स्ट जॉइन फंक्शन, इसमें क्या डेलीमीटर कि हमें अगर हम रो का ही डेटा कंपाइल करना है, ज्वाइन करना है, तो उसके डेलीमीटर क्या देना है, मीन्स उसमें स्पेस देना है बीच में या फिर ब्लैंक देना है, तो ये उसके लिए यूज़ होगा। जैसे मैंने यहाँ पे इसमें डेलीमीटर डिफाइन कर दिया, कॉमा। इग्नोर एम्पटी में हमें करना होता है ट्रू, कॉमा, टेक्स्ट वन या तो हम ऐसे कर सकते हैं कि टेक्स्ट वन ये हो गया एंड टेक्स्ट टू हमारा ये हो गया। तो वन बाय वन करके या तो यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, और अगर हमें वन बाय वन नहीं करना है, अब यहाँ पे मैं देखती हूँ, तो यहाँ पे मुझे बस क्या करना पड़ा, A3 और B3 को लिया और यहाँ पे ड्रैग डाउन कर दिया। और इसमें एक एरे फॉर्मेट में भी हम फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ से ये रेंज सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे ये एक साथ इसके साथ भी डेटा आ गया A3 to B3 तक। बट अब चाहिए कि जितने भी फर्स्ट नेम है ये सारे कंपाइल हो जाए, तो इसके लिए क्या करेंगे, मैं फिर से टेक्स्ट जॉइन फंक्शन यूज कर देंगे। टेक्स्ट जॉइन डेलीमीटर दे दिया इसमें, कॉमा एंड स्पेस, इग्नोर एम्पटी में ट्रू करना है। अब टेक्स्ट वन क्या हो गया हमारा, ये हो गया। अब ये हमें एंड तक का डेटा इसमें चाहिए, A3 से लेके A25 तक। ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर कर दिया, और आप देखोगे एक ही फर्स्ट नेम सभी के आ गए हैं कंपाइल होके, उसमें कॉमा भी लग गया है और स्पेस भी लग गया है। और इसी में चाहते हो कि लास्ट नेम भी आ जाए साथ ही इसके, कॉमा किया, आपने टेक्स्ट 2 पे ये सिलेक्ट किया एंड B3 to B25 का डेटा इस पे ले लिया। अब यहाँ पे एंटर करेंगे, तब यहाँ देखोगे फर्स्ट नेम आ गया पहले सभी का, फिर उसके बाद यहाँ सेकंड नेम आ गया सभी का, ये जो भी आपको डेटा दिख रहा है, ये यहाँ पे देखो ये डेटा आ गया सभी का कंपाइल होके। तो ये काफ़ी अच्छा फंक्शन है कि हम इसमें सभी मल्टीपल रोज को भी हम इसमें कंपाइल कर सकते हैं, मल्टीपल कॉलम्स को भी कंपाइल कर सकते हैं, और मल्टीपल रोज कॉलम को एक साथ भी कंपाइल कर सकते हैं। तो टेक्स्ट जॉइन फंक्शन बेसिकली ज्वाइन करने के लिए होता है कि कोई भी 2 सेल्स में डेटा है, 2 कॉलम्स में डेटा है, 3 कॉलम्स में डेटा है, कितने भी कॉलम्स में डेटा है या फिर कितने भी रोज में डेटा है, वो सभी को वन टाइम में ही कंपाइल कर देता है। टेक्स्ट जॉइन फंक्शन डेलीमीटर मैंने इसमें दे दिया हाइफन, कॉमा, इग्नोर एम्पटी को ट्रू करते हैं। टेक्स्ट वन हमारा ये हो गया, टेक्स्ट टू हमारा B3 हो गया। यहाँ पे किया ये फंक्शन ड्रैग डाउन किया। अब यहाँ देखो यहाँ पे फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम के बीच में हाइफन भी आ गया, और हमारा ये दोनों का डेटा कंपाइल होके भी इधर आ गया है। So typically, we would generally use an ampersand function. हम जनरली ampersand से ही ये काम कर सकते हैं। Array में भी आप ampersand से ही कर सकते हो, बीच में एक ampersand डाल के। But this is also an interesting function to know, just in case you guys want to use this.
So any questions on this, please feel free to ask. If not, we can move on to another very interesting function called unique. ये Excel में a lot of people struggle to sort of get this, but Google Sheet में ये बहुत simply हो जाता है. आपके पास एक लिस्ट ऑफ डेटा है, ठीक है, आप में से आपको उस लिस्ट ऑफ डेटा का बस यूनिक वैल्यूज ही चाहिए, ठीक है. So you can quickly get this with this unique function. Let's look at this. हेलो, मेरा नाम है योगेश और आज मैं आपको बताने वाला हूँ यूनिक फंक्शन के बारे में, जो कि गूगल शीट का एक सबसे जेनविन जो है कह सकते हैं हम फंक्शन है. तो यूनिक फंक्शन जनरली यूज़ किया जाता है डुप्लीकेट्स को रिमूव करने के लिए, हमारी गूगल शीट के अंदर से या किसी डेटा के अंदर से रिमूव करने के लिए, या पर्टिकुलर किसी रेंज से डिलीट करने के लिए. तो इसको यूज़ कैसे करते हैं, सबसे पहले मैं इसका आपको सिंटेक्स दिखा देता हूँ. तो सिंटेक्स है इक्वल टू ये यूनिक. इसका सिंटेक्स आप देखेंगे तो सबसे पहले ये सिंटेक्स में रेंज मांगता है. रेंज यानी कि वो रेंज जिसको हम शॉर्ट करना चाहते हैं, सॉरी शॉर्ट नहीं, यूनिक करना चाहते हैं या डुप्लीकेट्स रिमूव करना चाहते हैं. और जो आप क्लोज्ड ब्रैकेट में देख रहे हैं ये बाय कॉलम और एग्जैक्टली वंस का जो दिख रहा है, वो क्लोज ब्रैकेट में जो लिखा वो ऑप्शनल है, अगर आप उसको नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा. तो ये यूनिक फंक्शन का पूरा सिंटेक्स है जो आपको ये दिखाई दे रहा है. और अगर ये सिंटेक्स आपको किसी को नज़र नहीं आ रहा है तो आप इस क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करेंगे तो आपको ये सिंटेक्स पूरा दिखने लग जाएगा. इसके साथ साथ उसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है और मैंने डिफाइन भी किया हुआ है कि रेंज अब किसको कहते हैं, तो वो मैंने इस तरीके से यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है. तो मैं एक दो क्वेश्चन पे आता हूँ, क्वेश्चन करेंगे या इसको यूज़ करेंगे तो बेटर आइडिया होगा हमें. तो मैं अपने S1 शीट पे आया. यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यूनिक नेम्स को, मतलब ये जो मेरा डेटा दिया हुआ है यहाँ पर, इस डेटा में से ये जो नेम का कॉलम है इसमें से मैं यूनिक नेम्स निकालूंगा. तो उसको यूज़ करके देखते हैं. देखिए यूनिक नेम्स मेरे पूरे कैलकुलेट होके आ चुके हैं. और इसी तरीके से मैं अगर यूनिक नंबर्स निकालना चाहता हूँ या कोई और कॉलम्स निकालना चाहता हूँ तो मैं उसको. So basically that was that, guys. Any questions on this? अगर आप जो भी आपका प्लीज शीट में एक बार ट्राई कीजिए, ठीक है ना. यूनिक का फंक्शन लगाइए इक्वल्स टू UNIQUE open bracket and just select a column and close the bracket and hit enter. So whatever values are there in that column, उसका एक यूनिक लिस्ट आपके पास बन के आ जाता है, ठीक है. So again very easy to use, and I'm pretty sure most people here in the chat, I almost know all your names by now. You guys probably know this already, ठीक है. तो आगे बढ़ते हैं, concatenate देखते हैं एक बार, ठीक है. There are some small little things that you might learn from this also. Let's have a look at this. हाय फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं concatenate फंक्शन एंड जॉइंट फंक्शन एंड एम्परसेंड का हम यूज कहाँ पे करते हैं वो हम सीखते हैं आज. बेसिकली concatenate फंक्शन का हमारा वर्क क्या होता है कि आपको दो टेक्स्ट को ज्वाइन करना है, दो स्ट्रिंग को ज्वाइन करना है, दो नंबर्स को ज्वाइन करना है, जो कि आपको दो पर्टिकुलर प्लेसेस पे हैं, दो अलग अलग सेल्स में आप कर सकते हैं. सो लेट्स एग्जांपल, अगर आपको यहाँ पर क्या है, आपके फर्स्ट नेम, मिड नेम, लास्ट नेम, ये तीनों अलग अलग कॉलम्स में अब आपको एक साथ इनको ज्वाइन करना है. क्या नाम मतलब कि आपको करना है नीरज कुमार सिंह. यहाँ पर आपकी ये इनपुट, आपका आउटपुट ये आना चाहिए, राइट. सो अब इन तीनों टेक्स्ट को ज्वाइन करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, तो सबसे पहले हम इसको ज्वाइन करने के लिए यूज करते हैं कॉनकैटिनेट. तो कॉनकैटिनेट कैसे वर्क करता है वो हम देखते हैं. तो कॉनकैटिनेट का बेसिकली इक्वल टू लगाएंगे हम, यहाँ पर यूज ये लिखेंगे कॉनकैटिनेट आ गया हमारा. एंड इसका आर्गुमेंट देखते हैं. इसका आर्गुमेंट बिल्कुल सिंपल है, स्ट्रिंग 1, स्ट्रिंग 2, स्ट्रिंग 3, ऐसी आपको जितने भी आपकी स्ट्रिंग्स हैं, आपको कोई लिमिट नहीं है इसके अंदर कि आप यहाँ पे 3 टेक्स्ट को ज्वाइन कर सकते हैं, 4 टेक्स्ट को ज्वाइन कर सकते हैं, मल्टीपल, अनलिमिटेड, जितनी आपकी मर्जी उतने आप ज्वाइन कर सकते हैं. कुछ करना नहीं है, बस आपको उस पर रेफरेंस लेना है. यहाँ ये आपका स्ट्रिंग 1 हो गया, ये आपका स्ट्रिंग 2 हो गया, ये आपका स्ट्रिंग 3 हो गया, ये आपका स्ट्रिंग 4, मल्टीपल जितने भी है आपके स्ट्रिंग्स वो आप ले सकते हैं, सब आप ज्वाइन कर सकते हैं एक ही सेल के अंदर.
इसको ज्वाइन कर लिया, इसको ज्वाइन कर लिया, राइट। एंड ब्रैकेट को जितने आपको स्ट्रिंग ज्वाइन करने हैं वो आप ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पर कॉमा लगा के। सो अभी आप देख रहे हैं जितने हमने सेल्स यहाँ पर ये सारे के सारे एक सेल में ज्वाइन होकर आ गए यहाँ पर। तो बेसिकली हमको ऐसे नहीं चाहिए, हमको चाहिए नीरज देन स्पेस देन कुमार देन सिंह देन सिंह हम आना चाहिए, मतलब तीनों के बीच में हमें ये हमारा फर्स्ट नेम मिड नेम लास्ट नेम तीनों से ज्वाइन होना चाहिए एंड दोनों तीनों के बीच में स्पेस होना चाहिए, राइट। इसको हम कैसे करेंगे यहाँ पर कॉनकैटिनेट कॉनकैटिनेट हमने लिया यहाँ पर आपके A2 A2 में बार नीरज है, देन उसके बाद हम क्या चाहिए स्पेस चाहिए, तो स्पेस के लिए क्या करेंगे हम डबल कोटेशन देन स्पेस देन डबल कोटेशन में क्लोज करेंगे इसको हम, देन हमारा फर्स्ट नेम आ गया, उसके बाद हमने स्पेस डाल दिया, उसके बाद हमें क्या चाहिए स्पेस के बाद हमें मिड नेम चाहिए, राइट। देन यहाँ पर कॉमा आएगा, देन हमें इसके मिडने के बाद क्या चाहिए स्पेस चाहिए, देन यहाँ पर हम डबल कोटेशन में स्पेस डाल देंगे, उसके बाद फिर हमें क्या चाहिए लास्ट नेम चाहिए। तो ये आपका प्रॉपर फॉर्म आ गया आपका नीरज कुमार सिंह। आपके फर्स्ट नेम मिडिल नेम के बीच में एक स्पेस आ गया और मिडिल नेम लास्ट नेम के बीच में एक स्पेस आ गया, राइट। अब इसको हम ड्रैग कर देंगे नीचे तक, तो ये आपका नीचे तक योगेश कुमार शर्मा अनुज कुमार शर्मा और ये तीनों नेम ज्वाइन होकर आ गया आपके। अब ये तो हो गया आपको कॉनकैटिनेट से, ठीक है। अब हम इसको सीखते हैं एम्परसेंड से। एम्परसेंड मतलब आपकी एंड का साइन होता है, तो इससे भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, इससे भी आप मल्टीपल टेक्स्ट को ज्वाइन कर सकते हैं इजीली। तो इससे हम कैसे करेंगे, हमने रेफरेंस लिया फर्स्ट नेम का, देन क्या करेंगे हम एम्परसेंड। अब देखिए अब एम्परसेंड के बाद हम अगर नॉर्मली हम ले लेते हैं मिड नेम, तो क्या करेगा इन दोनों को ज्वाइन कर देगा ये। अभी आप देख रहे हैं एम्परसेंड से क्या किया इसने दोनों को ज्वाइन कर दिया, राइट। बट अगर हमें इसके बीच में स्पेस चाहिए तो कैसे करेंगे हम स्पेस लाने के लिए दोनों के बीच में, सो दोबारा हम यहाँ पर A2 का रेफरेंस लेंगे देन एम्परसेंड। अब हमें क्या चाहिए स्पेस, देन फिर हम स्पेस के लिए क्या डबल कोटेशन में हम यहाँ पर स्पेस डाल देंगे, देन फिर हमें क्या लगाना पड़ेगा एम्परसेंड, फिर हम लेंगे मिड नेम लिया हमने, देन हमें क्या चाहिए उसके बाद फिर हम एम्परसेंड लगाएंगे, फिर डबल कोटेशन में स्पेस डालेंगे, देन हमें क्या चाहिए लास्ट नेम चाहिए। तो ये क्या करेगा आपको तीनों को ज्वाइन करके यहाँ पर आपका आउटपुट आ जाएगा नीरज कुमार सिंह, जैसे यहाँ पर कॉन्कैटिनेट से आया था, राइट। एंड इसको आप ट्रैक कर सकते हैं। अब हमने सीख लिया कॉन्कैटिनेट से कैसे करते हैं ज्वाइन, एम्परसेंड से कैसे करते हैं ज्वाइन। अब अभी तो हमने स्पेस के साथ देखा, अगर आपको बीच में अगर मान लीजिए कि वो हाइफन लेके आना है, सो आप नॉर्मली इसको कर सकते हैं कॉन्कैटिनेट या उससे एम्परसेंड से। तो आपने यहाँ पे A2 का रेफरेंस दिया, देन अगर आपको स्पेस से ज्वाइन करना है तो स्पेस डालिए डबल कोटेशन में, अगर आपको कुछ और टेक्स्ट लिखना है तो लाइक आपको हाइफन देना है यहाँ पर तो हाइफन दे दीजिए, आपको प्लस का साइन देना है तो प्लस का साइन दे दीजिए, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। देन उसके बाद एम्परसेंड लगाएंगे यहाँ पर हमने B2 का रेफरेंस दे दिया, तो क्या करेगा ये नीरज प्लस कुमार ऐसा आ गया। तो जिस चीज के साथ आपको दोनों को ज्वाइन करना है उसको यहाँ पर डबल कोटेशन में डाल देना है, राइट। डबल कोटेशन हम डाल देते हैं, हाइफन डाल देते हैं, हाइफन आ गया ये, ठीक है। अब ये इस तरह इस फॉर्म में आ गया। अगर आप चाहते हैं अगर आप चाहते हैं इसमें लास्ट नेम को ज्वाइन कर, लास्ट नेम के लिए फिर हम दोबारा यहाँ पे एम्परसेंड, यहाँ पे डबल कोटेशन में हमारा ये हाइफन आ जाएगा, देन एम्परसेंड, यहाँ पर मैंने लास्ट नेम डाल दिया, तो ये दोनों यहाँ पर नीरज हाइफन कुमार हाइफन सिंह आ गया इस तरीके से, राइट। तो जिस चीज को जो भी चीज आपको बीच में यहाँ पे इंक्लूड करना है, सो यहाँ पर आपके एम्परसेंड में डाल देना है इसको, बस सिंपल। अभी हमने सीख लिया ये एम्परसेंड का यूज कैसे करते हैं ज्वाइन करने के लिए। अब सबसे इजी एंड सिंपल तरीका होता है आपका ज्वाइन फंक्शन। ज्वाइन फंक्शन से कैसे करते हैं हम इसको, तो ज्वाइन का बेसिकली दो आर्गुमेंट होता है। फर्स्ट आर्गुमेंट होता है आपका डेलीमीटर एंड सेकंड आर्गुमेंट होता है आपका टेक्स्ट। ज्वाइन का मैं फंक्शन बताता हूँ आपको, ज्वाइन कॉन्कैटिनेट द एलिमेंट्स ऑफ अरेज विद डेलीमीटर।
तो इसके लिए क्या करना, इसके लिए आपको बार बार ऐसे कि हम कॉन्केटिनेट में कर रहे थे, कॉन्केटिनेट एम्परसेंड की कंडीशन में हमने पहले A2 लिया, देन B2 लिया, देन C2 लिया, तब उसके बीच बीच में हमने स्पेस डाला। इसके लिए ऐसा करने की जरूरत नहीं। अगर आपको तीनों के बीच में स्पेस चाहिए, कहना मतलब कि लेट्स सपोज अगर आपको तीनों फर्स्ट नेम, मिड नेम, लास्ट नेम, सबसे पहले हमारा क्या है, इसका आर्गुमेंट है डेलीमीटर। तो डेलीमीटर हमें क्या चाहिए, स्पेस चाहिए, तो उन तीनों को जॉइन करेगा, स्पेस चाहिए। देन हमें क्या चाहिए, एरे। तो एरे हमारा क्या हो जाएगा, ये रेंज हो जाएगा, फर्स्ट नेम, मिड नेम, लास्ट नेम, A2 से लेकर C2। देन एंटर कीजिए, तो ये क्या आ गया, ये तीनों को एक साथ इसने जॉइन कर दिया। तो ये इस कंडीशन में काम करता है जब आपका डेलीमीटर सेम रहता है। डेलीमीटर कहने का मतलब कि जो आपकी पिच की वैल्यू होगी, ये दो दो टेक्स्ट को जॉइन करेगी, वो सेम होनी चाहिए, तब जॉइन फंक्शन काम कर जाता है। लेट्स सपोज कहना मतलब क्या है कि अगर आपको नीरज और कुमार के बीच में स्पेस चाहिए एंड कुमार और सिंह के बीच में आपको कुछ और आइकन चाहिए, हाइफन चाहिए, तो उस कंडीशन में आप कॉन्केटिनेट या आपका एम्परसेंड काम आएगा। जैसे कि अभी तो जॉइन फंक्शन से हमने कर दिया, हमने तीनों के बीच में क्या, फर्स्ट नेम, मिड नेम, लास्ट नेम के बीच में क्या करते हैं, स्पेस डाल दिया। अगर आपको फर्स्ट नेम और सेकंड नेम के बीच में स्पेस चाहिए, सेकंड नेम लास्ट नेम के बीच में हाइफन चाहिए, देन आप ये फंक्शन यूज नहीं कर सकते, जॉइन फंक्शन। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या यूज करना पड़ता है, सेम कॉन्केटिनेट या एम्परसेंड। लाइक अब देखिए हम कॉन्केटिनेट से करते हैं इसको। तो जैसा कि मैंने कहा कि हमें फर्स्ट नेम और सेकंड नेम के बीच में स्पेस चाहिए, तो हमने क्या किया, यहाँ पर फर्स्ट नेम और सेकंड नेम के बीच में स्पेस देते हैं यहाँ पर। ठीक है, एंड सेकंड नेम और लास्ट नेम के बीच में क्या चाहिए, हाइफन का साइन चाहिए, हाइफन दे दिया हमने यहाँ पर। देन हमने लास्ट नेम का यहाँ पर पैटर्न दे दिया। ये देखिए फर्स्ट नेम और सेकंड नेम के बीच हमारा क्या आ गया, स्पेस आ गया, एंड सेकंड नेम और लास्ट नेम के बीच हमारा क्या आ गया, हाइफन आ गया। राइट, तो अगर आपका डेलीमीटर जॉइन करने का जो पैरामीटर है वो चेंज होगा आगे, तो उस कंडीशन में आपका कॉन्केटिनेट यूजफुल रहेगा। अगर आपको तीनों टेस्ट को जॉइन करने का पैरामीटर सेम रहेगा या स्पेस रहेगा या हाइफन रहेगा, सेम जी रहेगी, तो उस कंडीशन में आपका यूजफुल रहेगा जॉइन फंक्शन, जो आप इजीली कर सकते हैं। आपको नॉर्मली डेलीमीटर देना है एंड आपको रेफरेंस दे देना है, जिससे आपको टेस्ट जॉइन होकर आ जाएगा एक सेल के अंदर। अब इससे कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। ये हमने इससे फॉर्मूले को ड्रैग कर दिया। अब हम देखते हैं, अब अगर आपको क्या करना है, फर्स्ट नेम ले आए हम, देन उसके बाद हमें चाहिए मोबाइल नंबर, देन उसके बाद हमें क्या चाहिए, आपका लास्ट नेम। राइट, तो इसको हम क्या यूज करेंगे, इसके लिए सिंपल सेम। अब इसके लिए आप या तो जॉइन यूज कर सकते हैं, या आप कॉन्केटिनेट भी यूज कर सकते हैं, या आप एम्परसेंड के साथ भी इसको जॉइन कर सकते हैं। तो देखते हैं तीनों बारी बारी से। सबसे पहले हम करते हैं कॉन्केटिनेट से। कॉन्केटिनेट से हमने ले लिया, यहाँ पर हमने फर्स्ट नेम लिया, उसके बाद क्या चाहिए, हमें मोबाइल नंबर चाहिए। अब इन दोनों के बीच हमें क्या चाहिए, हाइफन चाहिए, तो हमने यहाँ पर हाइफन डबल कोटेशन में दे दिया, देन कॉमा, देन हमें क्या चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए। मोबाइल नंबर के बाद सिर्फ अगेन कॉमा लगाएंगे हम, फिर हमें किसके साथ जॉइन करना है, हाइफन के साथ। देन हमें क्या चाहिए, लास्ट नेम चाहिए। लास्ट नेम के लिए हमने C2 का रेफरेंस दे दिया। राइट, अब इसको हम ब्रैकेट क्लोज करते हैं, देन एंटर। तो ये क्या हुआ, नीरज, देन आपका मोबाइल नंबर आया, देन आपका लास्ट नेम आया। राइट, अभी हमने किया ये कॉन्केटिनेट से। अब हम इसको करते हैं, अब हम इसको करेंगे एम्परसेंड के साथ। एम्परसेंड के साथ कैसे करेंगे इसको, हमने नीरज का रेफरेंस लिया, देन हमने एम्परसेंड लगाया, देन यहाँ पर हाइफन चाहिए हमें बीच में, उसके बाद हमें क्या चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए, देन उसके बाद हमें फिर एम्परसेंड लगाना है, उसके बाद फिर हमें हाइफन चाहिए, एंड हाइफन के बाद हमें क्या चाहिए, लास्ट नेम चाहिए। राइट, तो ये आपका आ गया
एम्परसेंड के साथ, राइट। अब हम करेंगे इसको जॉइन फंक्शन के साथ। तो जॉइन फंक्शन के साथ हम इजीली कर सकते हैं इसको। नॉर्मली आप कुछ नहीं करना है आपको, सेम हमने जॉइन लगाया, हमारा डेलीमीटर रहेगा हाइफन एंड उसके बाद आपको रेफरेंस दे देना है नॉर्मली। अब इस कंडीशन में देखिए, अब इस कंडीशन में आप रेफरेंस कैसे देंगे? अब ऐसे तो आप कर नहीं पाएंगे, ऐसे करेंगे तो ये चार फंक्शन पे जॉइन कर देगा, राइट। सो इसके लिए हम कैसे रेफरेंस दें कि हमारा फर्स्ट नेम लास्ट नेम, फर्स्ट नेम पहले आए, फिर हमारा मोबाइल नंबर आया, देन हमारा लास्ट नेम आया। अभी हमने A2 से लेकर D2 दे दिया, फिर क्या कर रहा है नीरज कुमार देन सिंह देन मोबाइल नंबर आ रहा है, बट हमें इस फॉर्मेट नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, नीरज पहले चाहिए, उसके बाद मोबाइल नंबर चाहिए, उसके बाद हमें क्या चाहिए, आपका लास्ट नेम चाहिए, राइट। तो हम कैसे करेंगे? तो इसको करने के लिए, तो इसको हम कैसे करेंगे, जैसे कि हमारा फर्स्ट नेम पहले आया, देन आपका मोबाइल नंबर, देन आपका लास्ट नेम है। तो इसके करने के लिए हम सेम हमने पहले तो एम्परसेंड और कॉन्केटिनेट से कर लिया इसको। अब हम इसको जॉइन से कैसे करेंगे? जॉइन करने के लिए करना पड़ेगा आपको सेम जॉइन, आपने हाइफन दिया यहाँ पर, तो सबसे पहले क्या चाहिए आपको, फर्स्ट नेम चाहिए, उसके बाद अगर चाहिए मोबाइल नंबर चाहिए, मोबाइल नंबर कहाँ पर हमारा D2 में है, राइट। उसके बाद क्या चाहिए आपको, लास्ट नेम चाहिए, तो यहाँ पे आपने लास्ट नेम दे दिया, देन ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। सो ये आपका तीनों तरीके से आ गया एम्परसेंड कॉन्केटिनेट जॉइन, राइट। तो जॉइन के लिए मैं दोबारा बता रहा हूँ कि जॉइन उस फंक्शन में काम करेगा जब आपको सभी टेस्ट को जॉइन करने का डेलीमीटर सेम होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको नीरज कुमार सिंह को तीनों को आप जॉइन कर रहे हैं, तो आप चाहते नीरज कुमार को आप जॉइन करें स्पेस के साथ, और कुमार और सिंह को साथ आप जो कुमार और सिंह को जॉइन कर रहे हैं हाइफन के साथ, तो उस कंडीशन में आप जॉइन फंक्शन यूज नहीं कर सकते क्योंकि आपका डेलीमीटर सेम होगा। वो जितने भी टेक्स्ट आप डालेंगे उस एरे में या उस रेफरेंस में, तो वो आपको सेम डेलीमीटर के साथ जॉइन करके देगा वो रिजल्ट, राइट। तो उस कंडीशन में guys क्या करना पड़ेगा, कॉन्केटिनेट या एम्परसेंड यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का कॉन्केटिनेट एंड जॉइन एंड एम्परसेंड के साथ हम कैसे मल्टीपल टेस्ट को जॉइन कर सकते हैं। All right. So that was that. आप लोगों में से यहाँ पे कोई है जिसके जिसके लिए मतलब यू लर्न समथिंग न्यू टुडे सो फार, यू नो आपको ये पता नहीं था और आपका कोई क्वेश्चन है, प्लीज चैट में मी टाइप कीजिए। कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन टाइप कीजिए। अगर इफ यू लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम दिस, प्लीज टाइप मी। Okay, so you all knew this, right? Because I see most of you are part of the DME workshop as well. Ampersand is new. Okay, okay. So ampersand is something that I would say is very handy in itself. It's like a one key kind of a function. ठीक है ना, इसको आप हर जगह यूज कर सकते हैं। ये हम लोग काफी जगह फॉर्मूलाज के अंदर भी हम लोग इसको यूज करते हैं। सो यस, इट इज डेफिनेटली a very handy useful way of doing things. Let's move on to the right function. फ्रेंड्स, तो आज हम लोग सीखते हैं कि हमें राइट फंक्शन का यूज़ कैसे करना है। राइट फंक्शन सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि राइट फंक्शन करता क्या है। राइट फंक्शन आपके राइट से जितनी भी आप कैरेक्टर्स को देंगे उतना वो आपको पिक करा के दिखा देगा। अब देखिए कि ये कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पर मैंने कुछ सेल्स में वैल्यूज़ ली हुई है, इसमें मैं आपको राइट फंक्शन का यूज़ करके दिखाऊंगी। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगी राइट। राइट में सबसे पहले उसको देनी होगी आपको स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है, एक तरीके से जो वैल्यू होती है वो। देन उसके बाद आपको देना है इसमें कि कितने कैरेक्टर्स आपको शो करने हैं, राइट से कितने कैरेक्टर्स वो पिक करे। तो यहाँ पे मैं 3 दे देती हूँ ताकि ये मुझे बॉक्स रिवर्ट कर दे फिर। तो देखिए यहाँ पर इसने मुझे बॉक्स दे दिए है। ऐसे ही मैं अगर कोई सेंटेंस है उसमें से चाहती हूँ कि राइट से मेरे को कुछ वैल्यू निकाल के दे दे, कुछ मेरे को इतना उठा के दे दे, तो मैं क्या कर सकती हूँ, उसको यूज़ कर सकती हूँ। जैसे अगर आप नीचे वाला ही देखेंगे सेंटेंस जिसमें लिखा है हे हाउ आर यू,
अब मैं चाहती हूँ कि मुझे ना जो मेरा राइट साइड में यू लिखा हुआ है ये प्रॉपर मुझे यहाँ पे शो हो जाए। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, राइट लगाऊंगी। अगर आप कैरेक्टर्स काउंट करेंगे तो यहाँ पर अगर हम यू देखें तो ये 3 कैरेक्टर्स है और बाद में जो क्वेश्चन मार्क है वो 4 है। तो मैं यहाँ पर क्या दूंगी, 4, ताकि वो राइट से 4 कैरेक्टर्स उठाए। अगर मैं 3 दूंगी उसको तो ओ यू के बाद वो क्वेश्चन मार्क उठा के चलेगा, वो पूरा यू क्वेश्चन मार्क नहीं उठाएगा। इसलिए मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा 4। देन मैं ब्रैकेट कर दूंगी क्लोज। क्लोज करने के बाद मैं यहाँ पे कर दूंगी एंटर। तो यहाँ पर देखिए ये इस तरीके से यू और क्वेश्चन मार्क इसने मुझे उठा के दिखा दिए। इस तरीके से आप लोग राइट फंक्शन का यूज कैसे करता है, राइट साइड से ये वैल्यूज आप क्लोज करने के बाद मैं यहाँ पे कर दूंगी एंटर। ओके, सो अपॉलॉजीज फॉर द साउंड। मैं एक बार ना आप लोगों को ऐसे ही समझा देता हूँ। देखिए, राइट फंक्शन क्या करता है, आपके पास मान लीजिए एक सेल में कुछ वैल्यूज हैं, कुछ भी वैल्यूज हो सकता है, ठीक है। तो आप मान के चलिए कि वो सेल का राइट हैंड साइड से, ठीक है, यू नीड अ सर्टेन सेट ऑफ कैरेक्टर्स। जैसे कि यहाँ पे ये जो एग्जांपल हमने लिखे हैं, ठीक है, उसमें से मुझे जो B6 वाला जो सेल है, इस सेल का राइट हैंड साइड से, ठीक है ना, जितना भी कैरेक्टर्स है उसका राइट हैंड साइड से मुझे 4 कैरेक्टर्स चाहिए। मतलब क्वेश्चन मार्क हो गया, यू हो गया, ओ हो गया और वाई हो गया। सो बेसिकली आई कैन राइट फंक्शन ओपन ब्रैकेट B6 कॉमा द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आई नीड, ठीक है। तो 4 से ये वो आ जाएगा, यू हमें डिस्प्ले कर देगा। सो sorry, Jagrit is, I think mic was a little low. So, I'll try and see if there are any other videos. We'll try and probably, re-record them and, put them out for you guys. ठीक है? Any questions on this? इसमें Sir, एक और, हाँ, हाँ, ये एक्सेल में जैसे फ्लैश फिल फंक्शन होता है, तो इसमें कोई ऐसा टूल है जिसमें हम इसी तरह से उसको फर्स्ट मिड लास्ट देख सकते हैं। अदरवाइज टेक्स्ट टू कॉलम है, हाँ, सिमिलर हाँ. फंक्शन कोई यूज है उसमें? all of them are here. You can write mid, you can write left, you can do all of that. नहीं Utility of सर, this, हाँ, जो कहने करिए. का मतलब ये है जैसे राइट लेफ्ट थोड़ा सा क्रिटिकल जाता है, मिडल वर्ड वगैरह निकल, उसका फॉर्मूला का नॉलेज होना। फ्लैश फिल आपने शायद यूज किया होगा, Flash fill, yes, हाँ, yes. तो इसमें से Pretty सीधा intuitive. हाँ, हाँ. अभी उसमें सर मेरा सरनेम है मुधोड़कर, तो स्पेलिंग बहुत बड़ी है, MUDHOLKR, और मुझे उल्टा लिखना है, पीछे से उसकी स्पेलिंग स्टार्ट करनी, ऐसा तो कोई फॉर्मूला नहीं बन पाएगा। Right. हाँ, तो ये फ्लैश फिल से बहुत बन इजी जाता तरह है, से हो जाता है। रेजेक्स एक्सट्रैक्ट से बन जाता है, बट एनीवेज, हाँ बताओ. हाँ, तो ये इतना इजी टूल है ना फ्लैश फिल का सर, कुछ Right. सेकंड में वो डेटा पुल अप कर लेता है अंडरस्टैंड करके। It is और almost like an AI. Yes, तो but the इसमें good है क्या news सर? is Google is also coming up with it. You'll have to give Google a ओके few more, this thing. If you are part of the Google's Insider program, now they're coming up with automated, formula correction. ठीक है. उसके साथ साथ I am pretty sure, the flash fills and everything else. You will already see now if you write a formula, it asks you to, automatically either press Control Enter and it automatically shows कि वो नीचे तक उसको drag करेगा और suggestion देता है. ओके। So they are coming up with these things. So yes, definitely something to look out for. Sadbir is here. He says, "Good afternoon, sir. I am just watching this on incognito without any audio, volume, camera, more focused on WhatsApp marketing." So Sadbir, thank you so much for joining us. Again, Sadbir, don't worry, you are not going to miss out too much on this. And those of you who are doing this, you're watching the marketing parallel program that's going on right now. Go ahead and focus on the marketing program. ठीक है. ये चीज if you are a DNE, the stuff that we are covering today are not very important for you guys, definitely barring the last two functions, which is regex match and regex extract, which we are going to do after the text function. वो दो definitely important है, but those two are like really the pinnacle of the mountain. तो वो 5-5 मिनट का वीडियो देख के आज आपको ज्यादा उखाड़ नहीं पाओगे, वो बस आपको एक नया डायरेक्शन देगा. ठीक है ना. ये वीडियो तो इसमें अवेलेबल
हमारा यूट्यूब चैनल में अवेलेबल तो हो ही जाएगा आपको, ठीक है, शाम तक या फिर मैक्सिमम मंडे तक. बट DME workshop में definitely eventually I'm looking at covering those two formulas in detail. I'm already doing another workshop to basically get better at it, so that I'm able to teach them. Olivia is asking, Oliva, right? Yeah, Oliva is asking, I keep getting your name wrong, I'm sorry. She's asking what is the utility of this function. So in terms of utility of a function, okay, the quickest thing that I can tell you is, let's say you have mobile numbers. Some people write +91 and then the phone number. Some people just write the phone number, right? So and some people write with a 0 and then the phone number, but that a phone number is 10 characters. So if you use a write function, okay, and if you just take from the right 10 characters, you will just get the phone numbers that way. There are obviously better ways of doing this. You can simply do a +91, find and replace. You will get the thing. There are many other cases where you need to basically build complicated formulas. So ये write function formulas के अंदर काफी काम आते हैं. Also let's say you have a primary key, ठीक है ना. आपका primary key can be defined something like, let's say you start with a product number, then let's say you put a hash, and then you put maybe the state code, or maybe the machine code, or maybe some other whatever, some characters, 1 2 3 4, some characters which basically has some linkage to either the production or maybe the color or maybe some dimensions of it. Let's say now your boss quickly asks you to do a summary of all the products which were read, which were sold. Okay, so what you can do is you can definitely write a if function where the last right most 4 characters can be matched or pulled out in one column. Then you can either sort them, or you can pivot them, and you can easily get that information. Yes, Ayushi, definitely. You can use left-right function to extract PAN number from GST number. Yes, you can, definitely. We, in fact, that is something that we definitely do. There's also another function called mid. You might want to explore that as well. You can say, so mid function works like, you can define. So let's say you have 20 characters. Okay. With the mid function, what happens is you can say, from the 5th character, give me 10 characters. ओके, तो उससे आपका जीएसटी वाला जो है वो मिड से बहुत इजीली निकल जाएगा. सो मिड इज समथिंग दैट वर्क्स अगेन रियली वेल. ठीक है, आगे चलते हैं. we'll move on to the text. हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग सीखेंगे कि हम लोग टेक्स्ट फंक्शन का यूज़ कैसे कर सकते हैं. सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग टेक्स्ट फंक्शन का यूज़ क्यों करते हैं. बेसिकली अगर देखा जाए तो हम लोग टेक्स्ट फंक्शन का यूज़ एक नंबर को टेक्स्ट के फॉर्मेट देने के लिए करते हैं. मैं आपको बताती हूँ कैसे. जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे कुछ डेटा मैंने यहाँ पे लिया हुआ है. जो मेरा ये है अभी नंबर है 23.99. मैं इसको कोई भी फॉर्मेट देना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, टेक्स्ट फंक्शन लगाऊंगी, ये दूंगी. उसके बाद मैं बताऊंगी इसको किस फॉर्मेट में मुझे ये चाहिए. तो मुझे ये चाहिए कि ये इस तरीके के फॉर्मेट में मुझे मिल जाए. तो मैंने ये क्या किया, एंटर कर दिया. तो यहाँ पर ये इस तरीके के फॉर्मेट में आ जाएगा. इसके बाद अगर ऐसे ही मैं चाहती हूँ कि मेरा जो 45 है, अभी न्यूमेरिकल डिजिट है ये, मैं इसको चाहती हूँ कि मैं इसको डेट में कन्वर्ट कर सकूँ. तो मैं इसके लिए क्या करूँगी, यहाँ पर सेम टेक्स्ट फंक्शन लगाऊंगी. जो मेरा न्यूमेरिकल वैल्यू है उसका रेफरेंस दूंगी. उसके बाद यहाँ पे फॉर्मेट डाल दूंगी, जो कि हमारा नॉर्मली डेट का फॉर्मेट होता है. तो ये इस फॉर्मेट में मुझे एज अ डेट मिल जाएगा.
ये देखिए इस तरीके से। इस तरीके से मुझे ये मिल जाएगा। इस तरीके से मैं टेक्स्ट फंक्शन का यूज़ करके अपने नंबर को फॉर्मेट में अपने नंबर को टेक्स्ट फॉर्मेट में चेंज कर सकती हूँ, कुछ भी फॉर्मेट में दे सकती हूँ। अगर यहाँ पर आप मान के चलिए यहाँ पर कुछ मेरा फॉर्मेट होता है डेट का ऑलरेडी, मान लीजिए इस तरीके से होता मेरा फॉर्मेट 12/05/2021, तो क्या इसको मैं दे सकती हूँ फॉर्मेट में कि स्लैश करके आ जाए, जैसे नॉर्मली हम लोगों को लिखा होता है ना डेट, इस तरीके से 12/05/2020 इस फॉर्मेट में मुझे डेट चाहिए, तभी भी मैं टेक्स्ट फंक्शन का यूज़ कर सकती हूँ। मैंने क्या किया, यहाँ पे टेक्स्ट लगा दिया, टेक्स्ट लगाने के बाद मैंने रेफरेंस दे दिया, उसके बाद बताऊंगी मुझे फॉर्मेट क्या चाहिए, तो मुझे dd/mm/yy ये वाला फॉर्मेट मुझे चाहिए। तो मैंने क्या किया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, तो देखिए ये फॉर्मेट मुझे मिल गया। तो ईजी है फॉर्मेट चेंज करना मेरे लिए, इस फंक्शन को यूज़ करके मैं फॉर्मेटिंग चेंज कर सकती हूँ। इस तरीके से हम लोग टेक्स्ट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। Right. Text again looks like a simple function, but it's a very useful function, and you can do a lot with text function. Seriously, a lot of things can be done with text function. So yeah, any specific questions with regards to this? If I have time, maybe I can answer it. चलिए, एक नया फंक्शन आज, आई थिंक नॉट टू मेनी पीपल वुड नो दिस, ओके, regex मैच, ठीक है, और regex एक्सट्रैक्ट। ये बेसिक इंट्रोडक्शन है इस फंक्शन का, बट दिस इन द होल ऑफ गूगल स्वीट, ओके, ये जो फंक्शन है, ठीक है, regex फॉर्मूलाज जो हैं, ठीक है ना, दे आर द मोस्ट डिफिकल्ट टू मास्टर, ठीक है। सो एटलीस्ट आप देख लो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, ये समझ लो, ठीक है। इसके साथ we will I'll try and bring you more this thing. Those of you who are not subscribed to Ben Collins, please subscribe to Ben Collins. He has a brilliant tutorial and a program on regex match and regex extract. In fact, he also has a dedicated course which is worth $100, but it's absolutely worth it. तो वो आप देख सकते हो। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग सीखेंगे कि हमें regex मैच फंक्शन का यूज़ कैसे करना है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हम ये फंक्शन यूज़ क्यों करते हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे मेरे पास कुछ डेटा है, उसमें मुझे मैच कराना है कि ये जो मेरा जो भी मैं डाल रही हूँ उसके अंदर रेगुलर एक्सप्रेशन जो भी होगा मेरा, वो इससे मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के लिए दिखा देती हूँ। जैसे मैं यहाँ पर डालती हूँ कि जिसमें भी सबसे पहले मैं regex मैच का फंक्शन लगाती हूँ। उसके बाद मुझे देना टेक्स्ट, जो भी मेरा टेक्स्ट है, मेरा टेक्स्ट ये है। अब इसके बाद मैं क्या दूंगी, जो मुझे मैच कराना है कि ये इसके अंदर इंक्लूड है या नहीं है। अब मैं चाहती हूँ कि जिसमें भी CEOIT बॉक्स हो वो वाला मुझे शो कर दे, तो ट्रू दिखा दे, अदरवाइज क्या दिखाएगा, वो फॉल्स। जिस टेक्स्ट में मेरा CEOIT बॉक्स इंक्लूड होगा उसमें वो ट्रू दिखाएगा, अदरवाइज वो क्या दिखाएगा, मुझे फॉल्स। मैंने एंटर किया, देखिए यहाँ पे ये ट्रू दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन मेरी मैच हो रही है कि ये CEOIT बॉक्स इसके अंदर इंक्लूडेड है। क्योंकि अगर मैं इसी को यहाँ पे ड्रैग करूँ तो देखिए यहाँ पे इसने फॉल्स दिखा दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर CEOIT बॉक्स नहीं। अगर मैं यहाँ पर इसी को एक यहाँ से अगर मैं x हटा दूँ तो ये यहाँ पे भी क्या दिखा देगा, फॉल्स, क्योंकि जो मैंने फॉर्मेटिंग यहाँ पे दी थी अपने रेगुलर एक्सप्रेशन की, वो फॉर्मेटिंग इससे मैच नहीं हो रही है, ठीक है। अब देखिए अगर मैं आपको दूसरी कंडीशन दिखाऊं हम और किस तरीके से मैच कर सकते हैं।
मान लीजिए मुझे ये देखना है कि कौन कौन सी ईमेल आईडीज है। मान लीजिए मेरे पास एक डेटा है जिसमें कि ईमेल आईडीज में कुछ लोगों ने नेम भी मिक्स कर दिए हैं और ईमेल आईडीज भी मिक्स कर दिए। अब मुझे उसमें से देखना है कि कौन कौन सी ईमेल आईडीज है, तो मैं उसमें भी इस फंक्शन का यूज कर सकती हूँ। देखिए किस तरीके से। देखिए मैंने ये लिया, इसके बाद मैं सेम करूंगी, इस टेक्स्ट को दूंगी। उसके बाद मुझे यहाँ पे ना फॉर्मेट डालना है ईमेल आईडी का। तो फॉर्मेट अगर आप देखेंगे ना, तो फॉर्मेट जो ये फॉर्मेट है, ये ईमेल आईडी का फॉर्मेट है। इससे ये क्या करेगा, ईमेल आईडी पिक करेगा। किस तरीके से ये देखा हुआ, इसका एक फॉर्मेट होता है। अगर आप नॉर्मली गूगल पे सर्च मारेंगे तो आपको वो भी मिल जाएगा। मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे भी एक बार। ये देखिए मैंने सर्च किया तो मुझे ईमेल आईडी का रेगुलर एक्सप्रेशन मिल गया, जो कि मैं रेगेक्स मैच फंक्शन में यूज़ कर सकती हूँ। तो आप देख लीजिए फॉर्मेट इसका किस तरीके से बनाना है। आप पहले ये लगाएंगे, उसके बाद अब आप इसके अंदर ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। फिर ए टू जेड कैरेक्टर्स आपने दिया पहले स्मॉल में, फिर ए टू जेड आपने दिया है कैपिटल में, क्योंकि ईमेल आईडी किसी भी तरीके से हो सकती है। मे बी वो कैपिटल हो या फिर स्मॉल हो, तो आप उस तरीके से फॉर्मेटिंग दे सकते हैं। हो सकता है ईमेल आईडी में कुछ कैरेक्टर्स भी हों, जैसे कि न्यूमेरिकल कैरेक्टर्स हो, जैसे कि 0 to 9 जो भी अल्फ़ाबेट्स होंगे आपके। तो इस तरीके से ये फॉर्मेट यहाँ पे बना हुआ है। तो मैं यहाँ पर यही फॉर्मेट पेस्ट कर दूंगी। इसके बाद मैं इसको कर दूंगी क्लोज। ये उन आईडीज में दिखा देगा जो कि ईमेल आईडीज होंगी, उनको ये क्या करेगा, ट्रू दिखा देगा। तो इस तरीके से मुझे इजी होगा ये देखने में कि कौन कौन सी ईमेल आईडीज हैं। अब देखिए अगर यहाँ पे देखें तो हरीश था, यहाँ पे कोई ईमेल आईडी नहीं थी। ईमेल आईडी का कोई फॉर्मेट नहीं था, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सिर्फ नाम था, इसलिए उसने मुझे क्या दिखाया, फॉल्स। इस तरीके से हम लोग रेगेक्स मैच फंक्शन के थ्रू अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेटा को मैच करा सकते हैं कि इसके अंदर ये चीज़ इंक्लूड है या नहीं। आई टेक द क्वेश्चंस लेटर, ठीक है ना। एक बार रेगेक्स एक्सट्रैक्ट भी देख लेते हैं, ठीक है। देन वी कैन कंबाइनली आंसर बोथ द क्वेश्चंस, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग सीखेंगे कि हमें रेग एक्सट्रैक्ट फंक्शन का यूज़ कैसे करना है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि रेग एक्सट्रैक्ट फंक्शन हम लोग यूज़ क्यों करते हैं, क्या यूज़ हो सकता है आपका इसका। तो मैं बता देती हूँ आपको ये चीज़। जैसे कि मान लीजिए आपके पास कुछ भी टेक्स्ट है, डेटा है, उसमें से आप चाहते हैं कि आप पर्टिकुलर वर्ड को या फिर किसी चीज़ को एक्सट्रैक्ट कर सके उस सेंटेंस के या फिर उस वर्ड के अंदर से, तो आप रेग एक्सट्रैक्ट फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं बताती हूँ कैसे। जैसे कि मान लीजिए आप कोई शीट बना रहे हैं, तो आपके पास उस शीट के अंदर कुछ मेल आईडीज प्रोवाइडेड है, जिसमें कि आपको सिर्फ उसका एट द रेट के बाद का मतलब डोमेन नेम चाहिए आपको। तो आप उसके लिए इस फंक्शन को यूज कर सकते हैं। इसमें क्या करेगा वो, आपका एट द रेट के बाद जितना भी कंटेंट आपका लिखा हुआ है वो आपको यहाँ पर निकाल के दे देगा। बेसिकली वो क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट कर देगा आपका जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है, उसमें से वो आपको एक्सट्रैक्ट करके वो डेटा को यहाँ पे दे देगा। अब मैं दिखाती हूँ आपको कि ये फंक्शन हम कैसे अप्लाई करते हैं। देखिए सबसे पहले ये क्या पूछ रहा है हमसे, सबसे पहले ये पूछेगा टेक्स्ट। तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट दूंगी। इसके बाद मैं दूंगी मुझे यहाँ से क्या चाहिए, यहाँ से मुझे कौन सा वर्ड एक्सट्रैक्ट करना है या फिर कौन सा अल्फ़ाबेट एक्सट्रैक्ट करना है। अब मैं जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि मुझे ये सिर्फ डॉट इन दे दे, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, सिर्फ डॉट इन लिख दूंगी। तो जहाँ पर भी डॉट इन होगा जिस भी टेक्स्ट में, वो मुझे डॉट इन दे देगा, अदरवाइज वो क्या करेगा, नहीं देगा। ये देखिए मैंने इसको ड्रैग कर दिया।
So this was a very basic example, and I see her also struggling with this. May Okay, I'll take your questions. Hang on for a second. बेसिक आइडिया ये है, देखिए अगर आपके पास एक सेंटेंस भी है समथिंग लाइक हाय माय नेम इज अभिषेक एंड माय ईमेल आईडी इज abhishek@uitbox.in. नाउ रेगुलर एक्सप्रेशन, ये वर्ड जो जहाँ से भी मैच करेगा, रेगुलर एक्सप्रेशन जो होता है, ठीक है ना, ईमेल आईडी का अगर रेगुलर एक्सप्रेशंस आप उसमें डाल देते हैं and you put it inside a regex extract, okay, what the system can do is from that sentence that I've given, that hi, my name is Abhishek Bose and my email ID is abhishek@uitbox.in, you can just extract the email address with the regex extract. Generally when you have lot of text के अंदर कहीं पे फोन नंबर्स है, कहीं पे email IDs हैं, तो and you have multiple text like this, ठीक है, लेट्स से कुछ आपका टेंडरिंग डॉक्यूमेंट हो गया, ठीक है ना, वहां पे आपको जाके ढूंढना पड़ता है कि ये सम कहाँ पे है, वैल्यूज कहाँ पे है, वो सारा चीज. तो यू कैन राइट different regular expressions in different columns, which will, let's say, pull out the EMD amount, which will, let's say, pull out the email address or a particular amount or a particular phone numbers starting with +91 and maybe having 10 characters. ये सारा चीज ना आप डिफाइन कर सकते हैं regex में. उसके लिए you will have to know how to write that regular expression, ठीक है. Once you understand how to write that regular expression, you can pull out the data from even the most messed up of data, which you can visually look and understand ki, yes, this is what I want to do. You can basically command the system to basically understand that just the way you are understanding, and then pull that information out. So that's the power of regex actually. ठीक है, आगे देखते हैं एक बार. ये निकाल के देगा. इसने मुझे मिन क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो डॉट इन से पहले ये भी आ रहा है यहाँ पे, अगर देखा जाए तो इसीलिए उसने मुझे वो निकाल के दे रहा था. वो इसी तरीके से मैं रैग एक्सट्रैक्ट का यूज करके इसमें से जो भी टेक्स्ट मैं चाहूँ वो एक्सट्रैक्ट कर सकती हूँ. अब मैं जैसे मान लीजिए मुझे चाहिए कि डोमेन नेम मुझे मिल जाए, एक तरीके से जो डोमेन नेम होता है आपका आईडीज का वो मुझे मिल जाए. तो मुझे अगर मैं एक एक बैठ के करूँगी तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा. बट अगर मैं फॉर्मूले के थ्रू उस डोमेन नेम को एक्सट्रैक्ट कर सकूँ आईडी से तो बहुत बेटर होगा मेरे लिए. तो देखिए किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं. मैंने ये किया, देन उसके बाद मैंने ये टेक्स्ट अपना दे दिया. ये देने के बाद ये मुझसे पूछेगा मतलब रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है. तो रेगुलर एक्सप्रेशन में मैं आप क्या दूंगी, मुझे डोमेन के बाद का चाहिए तो एक फॉर्मेटिंग है इसकी कि मुझे @ के बाद का जितना भी है वो उतना प्रोवाइड कर दे. मैंने एंटर कर दिया. तो ये देखिए उसने मुझे @ के बाद का जितना भी कंटेंट था जो मेरा डोमेन नेम था उसने वो मुझे प्रोवाइड कर दिया. तो बहुत इजी होगा मेरे लिए डोमेन नेम फाइंड करना. इसको मैं ड्रैग कर दूंगी तो मुझे जहाँ पे भी डोमेन नेम होगा वो मुझे फाइंड करके दे देगा, जहाँ पे भी @ के बाद का कंटेंट होगा. अगर यहीं पर मैं हरीश के आगे @gmail.com लगा दूँ तो वो मुझे @gmail.com दे देगा. तो इस तरीके से मैं अपने डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकती हूँ किसी टेक्स्ट से. इस तरीके से हम लोग इस फंक्शन का यूज कर सकते हैं. तो ये वाला जो फंक्शन है ये हम लोगों के लिए भी काफी प्रैक्टिकल है, बिकॉज व्हेन वी गिव यू ऑल एक्सेस टू योर डोमेन्स, ठीक है ना, you all send us your email IDs की this is the email ID, whoever has this domain, give them access. So what we do is we put it in a system which basically extracts that domain, and उस domain से जो भी हमारा जो स्क्रिप्ट है उसको पिंग करता है,
उसको बेसिकली एक्सेस मिल जाता है. So इसका बेसिकली as and when you start building complex things for yourself, regex match, regex extract, and there's another one called regex replace. ठीक है ना? तो ये सारा चीज काफी आपको हेल्प कर सकता है. ठीक है. So any specific questions regarding today's topic? Today I think we should stop at this only. If any of you are using regex match or extract, if you would like to show I will be more than happy. Any practical cases where you all are using this? So the next workshop is going to be next Saturday, which is basically the 14th of May, and that's all I had for today. Okay. Tarun Ahuja ji, you have a question, please. हेलो Hello. हेलो. जी. अभिषेक सर, मुझे एक क्वेश्चन पूछना था, गूगल शीट में पूछना था. सर जैसे 15-20 शीट्स है, टैब्स होते हैं नीचे, तो उसमें फाइंड करना, तो सारी शीट्स में एक नंबर फाइंड करना हो तो कैसे होगा? सारे शीट्स में एक नंबर फाइंड करना है ना, तो इट्स अ नॉर्मल कंट्रोल एफ इटसेल्फ. ठीक है. you have any of your sheet, you want to share your screen, or I can give you an example from my one of my sheets. ओके, आप ही एग्जांपल दे दीजिए. ठीक है, one second. Okay, I'll just take this sheet itself. One second, hang on. Just give me a second. Okay, my screen is visible, right? So let's say I want to find a specific number within all the sheets. यहाँ पे मेरा काफी सारा sheets है. ठीक है. तो मैं चाहता हूँ कि ये हर जगह से ये एक particular नाम find कर दे. Let's say I'll take Neeraj. ठीक है. So I can copy this. I can do Control F. ठीक है. यहाँ पे ये जो 3 dots है ना, इस पे आप क्लिक कर लीजिए. So what it will do is it will open this window. ठीक है. इसमें से you have this option. अगर आपको सारे sheets में से search करना है, then you do all sheets. If you want to search only within this sheet, you can do only within this sheet. If you want to do only within a specific range, मतलब let's say I select column B only. यहाँ पे आके if I only select the whole of column B, one second. So I can do that also. And let's say I want to find Neeraj within just the column B. So if I say find, it will keep finding wherever there is Neeraj. Again, within this, let's say you want to find only those cells which has exactly the word Neeraj. You're not interested in Neeraj Kumar. You only want to see exactly Neeraj. उसके साथ अगर कोई space भी है, तो उसको हटा दे. Then what you can do is match entire cell content. ठीक है? So click on find again. Now see within this area, it is only showing you that one single cell जहाँ पे ये Neeraj लिखा हुआ है. If I click on find again, no more results found. ठीक है? इसके साथ साथ you can do another thing. You can also do something like match case. Match case मतलब if I have n small and if I do a find, okay, ये देखिए no entries matching Neeraj. तो वो exact case wise भी match कर सकता है. ठीक है? And coming back to your question, if you want to search within all sheets, okay, and you are not worried about the match cases, you can basically go ahead and start clicking through this, and you will keep finding it. यहाँ पे Google Sheets hasn't given you the option of find all. Excel may I really like that idea which says find all and gives you a list of all the places जहाँ पे it is available. Since they have given us a replace all option,
maybe very soon they will give us a find all option as well. But I understand why they have not given us the find all option as of now, because if they do that, they'll also have to provide a additional window नीचे जहाँ पे all the options, how many options have been found, they will have to sort of display that as well. But अगर ये आपका काफी बड़ा database है और you need to do some major database cleaning up or whatever, some kind of a manipulation, what you all can definitely do is download this file in Excel. Very easily हो जाता है. Go to file, download as Excel, download this, and then you can use the same functionality by opening it in Excel. Okay sir, okay, thank you. No problem, most welcome. सर एक क्वेश्चन था, ये अभी जो उसने पूछा 2 ऑप्शन हो गए सर, नीचे के 3 ऑप्शन थोड़ा सा ब्रीफ करो ना सर. 2 ऑप्शन हो गया, नीचे के 3 ऑप्शन, ये रेगुलर एक्सप्रेशन है. ये देखो, ये for this you will have to know how to write a regular expression. Let's say I can say something like all email IDs, okay, which has let's say a particular company's name @xyz.com. ठीक है. So ये तो अभी नॉर्मल हम फाइंड फंक्शन से भी कर सकते हैं, इसके लिए आपको रेगुलर एक्सप्रेशन का जरूरत भी नहीं पड़ेगा. बट something like okay, let's put it this way. Let's say you want to know all the Airtel numbers, phone numbers mein you want to know all the Airtel numbers. Now okay, I do not know how the Airtel numbers look like anymore, okay, but let's say Jio numbers, ठीक है ना. All the Jio numbers, let's say, are starting with 774 something, and then it goes on, right? So with regular expressions, you can actually write a regular expression jahan pe you can say that give me all the numbers that is starting with 74 followed by 3 zeros, or let's say 74 se leke to a certain number, right? And you can basically find that as well. Search within formula जो है इसके बाद, ठीक है. Let's say you have some formulas, और formulas के अंदर आपको search करना है, ठीक है. Let's say you have some linkages with import ranges to some other file, ठीक है. आप वो import range का जो key है, वो import range का key यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है. And just search here, and it will tell you all the places where that file key has been used to link this file to any other file. Okay, let's say you have copied a file from another domain onto this domain. Okay, now the file keys have all changed. Okay, so what you will need to do is जहाँ पे वो import range का link था वो वाला file में, you will have to remap it to a new file because now your file key has changed. So what you can then do is you can search with that file key, okay, and replace it with a new file key within all the formulas. Ye, until and unless you tick on this also search within formulas, you will not be able to do that. जैसे एक्सेल में सर बोथ ऑफ केसेस से वो फाइंड करता है, जैसे फॉर्मूला भी इसमें ऑपरेशंस मींस ऑपरेशन इसमें सेपरेट दिया हुआ है. फॉर्मूले के अंदर का आपको सर्च करना है या बाहर का टेक्स्ट कंटेंट सर्च करना है? Yes, so by default it searches without the formulas, okay, but yeah, if you tick this, only then it will search within the formula also. And you can even replace within the formulas. Yes, clear. Okay. Also search within links is self-explanatory. If you have certain links, and let's say you have some folder IDs or whatever it is, मतलब links के अंदर जो भी आपको manipulation करना है आप कर सकते हो. Otherwise, it basically skips the links. In fact, very honestly, I've never used also search within links. I've never had to use it. और सर इसमें एक फंक्शन अवेलेबल है क्या, GoTo का फंक्शन जो एक्सेल में अवेलेबल है, जैसे मुझे पर्टिकुलर टेक्स्ट ही सेलेक्ट करना है, मुझे पर्टिकुलर नंबर ही सेलेक्ट करना है. Regular expression. You will
you will have to use regular अभी expression. इसमें से मुझे सब ने क्या है ना टेक्स्ट ही सेलेक्ट करना है, तो कैसे करूंगा मैं? टेक्स्ट सेलेक्ट करना है. हाँ, उन्हें भी सेलेक्ट होना चाहिए, जितने ही शीट में जितने भी टेक्स्ट हो वो सेलेक्ट हाँ. होना चाहिए, मुझे एट ए टाइम बोल्ड करना है. Select all the texts and make them bold and leave out the numbers. नहीं तो आपको नहीं क्या नहीं, इस शीट में मैंने बोला कि ये टोटल नंबर जितने हो उसको आप साइज 18 कर दो. Okay. ऐसा पॉसिबल होगा तो मैं गूगल एक्सेल में तो कंट्रोल जी दबा के टेक्स्ट कर देता हूँ, एंटर Go कर to देता में हूँ, जाके मैं yes, ऑपरेशन कर you can देता do हूँ. that. नहीं यहाँ पे they don't have that yet here. In fact, even like a normal selection, अगर आप करना चाहते हो, you can hold control and you can keep selecting around. But if you, for all practical purposes, if you need to copy only this area, copy the selection basically and put it in a different place, they don't have that functionality yet in this. उसको आपको फिर Excel में लेके जाके करना पड़ेगा. Like let's say if I copy these values and let's see if I take a simple notepad. कुछ टाइम पे सर एक्सेल का सहारा लेना पड़ता है सर. हाँ, कुछ जगह पे लेना पड़ेगा obviously. So देखिए, the last thing that I selected, that basically came. The rest of it did not come. So all the cell values did not come. See, you have to understand, there is no doubt that Excel is more powerful than Google Sheet. But do we always need that powerful tool? Right? हमें अगर एक nimble optimized version which is cheaper to use and easier to collaborate with से काम चल रहा है, तो Excel का हमें जरूरत नहीं है. Every time you do not need a 7-course meal. Sometimes you can use a packed sandwich, right? So that's the idea. ओके सर, थैंक यू. ठीक है ना? चलिए, okay guys, as Okay. always, lovely interacting with all of you. Yeah, Thank you, sir. I can very honestly go on. I know a lot of you can as well, but duty calls. ठीक है, Hello. other meetings are in line. Yeah. Good evening, sir. Thank you. Thank you. Hello. Hello. सर अभी मेरा 2 Zoom वाला सेशन हुआ, अभी ज्वाइन किया, अभी एंड हो गया सेशन. ठीक है आपका. चलिए कोई ना, रिकॉर्डिंग देखता हूँ. ओके सर. No worries. Okay. Bye. Bye, sir. Thank you. Bye. Good day to you too, and have a good weekend.